پانی کی لہریں بار بار کنارے سے آ کر ٹکرا رہی تھیں۔ وہ خاموش بیٹھا اس عمل کو دیکھ رہا تھا۔ پلوشا بھی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کون سی ایسی کشش تھی جو اسے اس شخص میں محسوس ہوتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس سے باتیں کرے، سنا کرے۔ یہ کیا احساس تھا؟ محبت تو نہیں۔ اتنی جلدی کیسے محبت ہو جاتی ہوگی؟ اتنی جلدی کسے محبت ہو جاتی ہوگی؟ تو پھر اس نے گہری سانس لے کر اپنے سر کو جھٹکا۔ کیسی ہے وہ اب؟ وہ پوچھنے لگی۔ شاہویز کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جب میں وہاں سے جا رہا تھا تب تو ٹھیک تھی وہ۔ اور بیبیز؟ اس کے پوچھنے پر وہ کچھ دیر خاموش رہا، سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، سر جھٹک کر پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ دل میں کسک سی رہ گئی تھی کہ میں ان ننھے فرشتوں کو ایک بار گود میں اٹھا لیتا۔ ایک عجیب سی خلش، تو اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ اس کے چہرے پر درد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش تھا۔ اٹھایا کیوں نہیں شاہویز؟ پھر اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ وہ اب اپنے لب کاٹنے لگا تھا۔ اپنا سب کچھ کھو دیا تم نے، بیوی، گھر، جاب، اپنی زندگی، اپنے آپ کو، اور وہ ایک لمحے کو رکی، اپنی محبت، پھر بھی خود کو کسی قابل نہیں سمجھتے۔ وہ ہنسا تھا۔ محبت؟ کون سی محبت؟ اسے نفرت کے سوا دیا ہی کیا ہے میں نے؟ وہ خود پہ ہنس رہا تھا۔ اب تو محبت کرنے لگے ہو اس سے؟ یہ بات کہتے ہوئے پلوشا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ شاہویز سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہم جیسے جواریوں کے نصیب میں محبتیں نہیں لکھی جاتی، ہم صرف مات کھانا جانتے ہیں۔ محبت تو… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ اب کسی اور کی بیوی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، اب ماں بن گئی ہے وہ 2 ننھے فرشتوں کی۔ اس سے محبت کرنا میرے لیے اب جرم ہے۔ اس کی آواز میں نمی محسوس ہو رہی تھی پلوشا کو۔ محبت تو کبھی بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے دھیمے لہجے سے کہنے پر وہ خاموش رہا، جیسے مجھے تم سے ہو گئی ہے۔ شاہویز نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اچانک ہنسنے لگا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے شاہویز؟ پلوشا کو برا لگا تھا شاید۔ شاہویز نفی میں سر ہلانے لگا۔ خود پہ ہنس رہا ہوں۔ تمہیں ترس آ رہا ہے مجھ پر، اس بات پر ہنس رہا ہوں۔ لیکن میں تو تب سے تم سے محبت کر بیٹھی تھی جب میں تمہیں جانتی بھی نہیں تھی، اور اب جان لینے کے بعد بھی تم سے محبت ہے۔ وہ پرسکون لہجے میں کہہ رہی تھی۔ پچھتاؤ گی پلوشا؟ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر بولا۔ نہیں فرق پڑتا مجھے، اس نے پرسکون سا جواب دیا۔ دکھ ہی ملیں گے تمہیں۔ شاہویز کے چہرے پر سایہ سا گزرا تھا۔ سہ لوں گی۔ وہ پھر بھی پرسکون تھی۔ شاہویز اس کی آنکھوں کے سکون کو دیکھے گیا، پھر سر جھٹک کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے جاب پر بھی جانا ہے، وہ کہہ کر چلا گیا، اور پلوشا اپنے لب کاٹتی اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ وہ شاید وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ پلوشا کی آنکھوں کا سکون، اس کا پرسکون لہجہ اسے بے سکون کر رہا تھا۔ اس کی ذات سے پلوشا کو کون سا سکون مل جانا تھا؟ کون سی محبت مل جانی تھی؟ وہ تو محبت کے آداب بھی نہیں جانتا تھا، تو کون سی محبت کرتا وہ؟ کہاں کی محبت کرتا وہ؟ وہ ابھی خود کو اس اذیت سے نہیں نکال پا رہا تھا جس اذیت میں وہ لمحہ لمحہ بکھر رہا تھا۔ کیسے ختم کرے اس اذیت کو؟ کیسے سکون لائے اپنے وجود میں؟ جب وہ خود سکون کی تلاش میں تھا تو وہ پلوشا کو کیا سکون دیتا؟ پانی کی لہروں کو دیکھتے ہوئے وہ شاہویز کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ وہ اس کے دکھ بانٹنا چاہتی تھی اپنی محبت سے، اسے ہر اذیت سے آزادی دلانا چاہتی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا اس بات کا کہ کتنے دن لگے اسے، شاید مہینے، شاید سال، لیکن وہ شاہویز کے ہر زخم کو بھرنا چاہتی تھی، اسے اذیت سے نکال کر زندگی کی طرف لانا چاہتی تھی، اور یہی تو محبت ہے۔ اب وہ گھر شفٹ ہو چکی تھی۔ امین شاہ پرسکون بیٹھا اپنے دونوں شہزادوں کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ انگلی کے پور سے ان کے چہروں کو ہلکا سا چھوتا تو وہ بند آنکھوں کے ساتھ کسمسانے لگتے۔ زانور محویت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، پھر جھجک کر اس کو آواز دی۔ امین؟ جی امین شاہ کی بیگم۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف مڑا تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ امین شاہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن شاید کہہ نہیں پا رہی تھی۔
वो उसके करीब होकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे देखने लगा। क्या बात बतानी है ज़ानूर, बताओ। वो खुश्क लबों पे ज़बान फेर कर उसे देखने लगी। शाहवेज़। वो रुक गई और पलकें झुकाए सोचने लगी कि कैसे अपनी बात बताए उसे। फिर हिम्मत करके हमीन शाह को देखने लगी। शाहवेज़ ने जिस तरह से मुझे और हमारे इन नन्हे फरिश्तों को जिस तरह नई ज़िंदगी बख्शी है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसकी ज़िंदगी उसे लौटा दो हमीन। उसने हिम्मत करके बात कर ही दी अपने दिल की। वो शर्मिंदा है, माफ़ी मांग चुका है, लेकिन यूं किसी की ज़िंदगी ख़त्म करके मैं कभी खुश नहीं रह सकती हमीन। ये गुनाह मैं नहीं कर सकती। प्लीज़ तुम भी उसे माफ़ कर दो। बेशक अल्लाह बेहतरीन मुआफ़ करने वाला है। फिर हमारी क्या औकात कि हम किसी के लिए सज़ा सुनाएं। प्लीज़ हमीन शाह। वो खामोश हो गई। हमीन शाह उसे पुरसोच निगाहों से देख रहा था, फिर हल्का सा मुस्कुराया। जैसा तुम चाहो ज़ानूर। उसकी पेशानी पर लब रख कर वो अपने शहजादों की तरफ मुतवज्जो हुआ। ज़ानूर भी अपने बच्चों को देखने लगी। दोनों ही खुश थे, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाकर दोनों ही खुश और मगन थे। और दिलावर शाह, उनकी आंखें, उनका चेहरा फरते मुसर्रत से खिल रहा था। वो आज जॉब से जल्दी घर आ गया था, तकरीबन 10 बजे ही। घर में दाखिल होते ही उसकी नज़र नफीसा पर पड़ी, जो बैग पैक किए उसके इंतज़ार में बैठी हुई थी। उसे देखकर वो जल्दी से अपनी जगह से उठी। खुशी उनके चेहरे पर दर्ज थी। शाहवेज़ ने सवालिया नज़रों से बैग्स को और फिर अपनी माँ को देखा, जबकि नफीसा कुछ पेपर्स उसके सामने करते बोली, हमें हमारा घर मिल गया है शाहवेज़। ये देखो, हमीन शाह के आदमी देकर गए हैं ये सब, देखो। वो खुशी से बता रही थी। शाहवेज़ पेपर्स को लेकर देखने लगा। घर के पेपर्स थे और एक अपॉइंटमेंट लेटर भी, मुल्क की मशहूर कंपनी की तरफ से। ये क्या है बेटा? नफीसा पूछने लगी। अपॉइंटमेंट लेटर है, जॉब के लिए। वो धीमे लहजे में बोला तो नफीसा की खुशी से बाछें खिल गईं। चलो बेटा, जल्दी से चलो, मुझे अभी के अभी अपने घर जाना है। वो जल्दी जल्दी अपने बैग्स उठाने लगी। हम कहीं नहीं जा रहे। शाहवेज़ की स्पाट आवाज़ पर वो रुक कर उसे देखने लगी। क्यों शाहवेज़, क्या कह के जा रही हैं आप वहाँ? आपकी वजह से हुआ था ना ये सब, सिर्फ आपकी वजह से। कभी ख्याल आया इस बात का? आया कभी कि ज़ानूर के साथ क्या गलत कर चुकी हैं आप? वो आपको आपका सब लौटा कर आप पे एहसान कर गई है, और आप क्या कर रही हैं बदले में? शाहवेज़ सर्द लहजे में कह रहा था, जबकि नफीसा उसे देख कर रह गई। वो हमारा ही घर था। नहीं है वो हमारा घर। वो ले चुके थे हमारा सब कुछ हमसे, और अब एहसान है उनका जो लौटा रहे हैं फिर से। आप क्या दे रही हैं बदले में उन्हें? उसकी आवाज़ ऊंची हो गई थी। नफीसा धड़कते दिल के साथ उसे देख रही थी। शाहवेज़, मैंने अपनी ज़िंदगी के कठिन दिन गुजारे हैं यहाँ, अल्लाह से दुआएं मांगी हैं कि मुझे मेरा घर वापस मिल जाए, और अब तुम मुझे मायूस मत करो। वो रो देने वाली हो गई थी। शाहवेज़ उनकी आंखों में आंसू देखकर नर्म पड़ गया। नहीं कह रहा मैं आपको कुछ, जस्ट समझा रहा हूँ आपको कि एटलीस्ट इतना तो सोचिए कि ज़ानूर के साथ हम कितना बुरा कर चुके हैं। एक बार, सिर्फ एक बार उससे माफ़ी मांगना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना अम्मी। नफीसा रो रही थी। मैं जाऊँगी उसके पास, उसके पाँव पड़ के उससे माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन अभी तो मुझे अपने घर ले चलो शाहवेज़। वो रो रही थी। शाहवेज़ ने एक ठंडी सांस भरी, फिर अपनी माँ को देखने लगा। चलिए। नफीसा रोना भूलकर अपना सामान उठाने लगी, और फिर अपने घर आकर उसने सुकून का सांस लिया। अपने घर की हर चीज़ को छू कर वो रो रही थी। अब क्यों रो रही हैं आप? शाहवेज़ उसे रोता देखकर पूछने लगा। मेरा घर, इस घर की हर चीज़ को छू कर आंसू खुद ब खुद ही गिर रहे हैं बेटा। शाहवेज़ वहीं लाउंज में सोफे पर नीम दराज हो गया। वो काफ़ी थका हुआ था। लेटते ही उसे नींद आ गई थी। सुबह जाकर उसकी आंख खुली, वो भी नफीसा की आवाज़ देने पर। वो अपनी माँ को देखने लगा नींद भरी आंखों से। उठो बेटा, तुम्हारा इंटरव्यू है आज। उसने एकदम से अपॉइंटमेंट लेटर का ख्याल किया। टाइम क्या हुआ है? वो पूछने लगा। 8 बज रहे हैं। शाहवेज़ उठकर बैठ चुका था और कुछ सोचने लगा। क्या सोच रहे हो बेटा? वो अपने बेटे को गुमसुम देखकर पूछने लगी। यही सोच रहा हूँ कि जाऊँ या नहीं। वो यूं ही खोया खोया सा कह रहा था। यही चांस मिला है तुम्हें शाहवेज़, इस चांस को हाथ से मत जाने दो बेटा। उठो मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ।
नफीसा उसे समझाने लगी थी। वो भी अपनी जगह से उठकर अपने कमरे में गया। कमरे में आते ही वो अपनी हर चीज़ को गौर से देखने लगा। थका थका सा वो वहीं सोफे पर बैठ गया। उसकी नज़र सामने ड्रेसिंग टेबल पर गई, जहाँ ज़ाहनूर की कुछ चूड़ियाँ अभी भी रखी हुई थी। उसके फेवरेट परफ्यूम की बोतल भी पड़ी थी। वो उठकर टेबल के करीब गया। ज़ाहनूर की लिपस्टिक भी एक कोने में रखी थी। उन पे उसका ध्यान कभी नहीं गया था, और अब जब वो सब खुली आंखों से देख रहा था तो उसे हर तरफ ज़ाहनूर ही नज़र आ रही थी। उसका ब्रेसलेट भी वहीं रखा था जो उसने शायद उतार दिया था और वहीं रख कर भूल गई थी। उसकी नज़र वार्डरोब पर गई। वो छोटे छोटे कदम उठाता वहाँ जाकर खड़ा हो गया। अलमारी के पट खोलकर वो ज़ाहनूर की रखी हर चीज़ को देखने लगा। वो यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर गई थी, शायद बस एक दो जोड़े ही लेकर गई हो। उसके कुछ ड्रेसेस अभी भी थे वहाँ पर हैंग किए हुए। उसका फेवरेट दुपट्टा भी यूं ही पड़ा था जो उसे बहुत पसंद था। उसके कुछ शूज़ भी। वो मुस्कुरा कर रह गया। तुम यहाँ से मुकम्मल कभी गई ही नहीं थी ज़ाहनूर। मैं ही आंखें बंद किए रहा था। नफीसा की आवाज़ पर वो चौंका था। उसे देर हो रही थी। वो जल्दी से अपने कपड़े निकाल कर वहीं बेड पर रख कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। छोटी बीबी जी आपसे मिलने आई हैं कोई। ज़ाहनूर जो सामिया को हिदायत दे रही थी आयशान और आयान से मुताल्लिक। सामिया को उसने कुछ दिन पहले ही रखा था बच्चों की केयर के लिए। चौंक कर अब्दुल को देखने लगी। कौन है जी? वो सर झुका गया। उसे समझ नहीं आई कि क्या कहे। अच्छा उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। अब्दुल सर इस बात में हिलाता चला गया। ज़ाहनूर भी बच्चों को प्यार करके बाहर निकली। ड्राइंग रूम तक वो यही सोच रही थी कि कौन हो सकता है, और जैसे ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो सामने नफीसा को देखकर वो वहीं रुक गई। हैरत से उसे देख रही थी जो परेशान सी सोफे पर बैठी हुई थी। ज़ाहनूर को देखकर एकदम से वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। ज़ाहनूर बेटा, अस्सलामुअलैकुम। वो भी करीब आते उन्हें सलाम करने लगी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, उसने नरमी से जवाब दिया। ज़ाहनूर को हैरत हुई थी उनका ये नर्म रवैया देखकर। बैठिए, वो अपनी हैरत पर काबू पाते हुए बोली। तो वो जल्दी से बैठ गई। ज़ाहनूर भी बैठ चुकी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जो शाहवेज़ की जॉब लगवाई और हमारा घर हमें वापस सौंप दिया। उसका मौदबाना लहजा देखकर ज़ाहनूर चौंकी थी। उसने गौर से नफीसा को देखा। वो कितनी कमज़ोर हो गई थी। उसका दिल पसीज गया था उसे यूं देखकर। मुझे माफ़ कर दो ज़ाहनूर बेटा, आपके साथ बहुत बुरा कर चुकी हूँ मैं। लेकिन वो एकदम से रोने लगी। लेकिन इन दिनों मुझे महसूस हुआ कि मैंने कितने जुल्म ढाए हैं आप पर। वो अपनी जगह से उठकर ज़ाहनूर के कदमों में बैठने ही लगी थी जब ज़ाहनूर एकदम से खड़ी हुई और बाजुओं से उन्हें थाम कर अपने सामने खड़ा किया। ये आप क्या कर रही हैं अम्मी? ज़ाहनूर ने घबरा कर उसे देखते हुए कहा। मैं बहुत गुनाहगार हूँ मेरी बच्ची। नफीसा आंसू भरी आंखों से उसे देख कर कहने लगी। मुझे अब एहसास हुआ है कि मैंने हीरा खोया है। ज़ाहनूर की आंखें भी भीगी हुई थी। ऐसे मत कहिए, आप मेरे लिए आज भी काबिल एहतराम हैं। प्लीज़ यूं करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बड़ी हैं आप मुझसे, माँ जी समझा है मैंने हमेशा आपको। यूं कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ज़ाहनूर उसके आंसू साफ करने लगी। नफीसा ने उसका माथा चूमा। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। ज़ाहनूर ने उसके हाथ थाम कर उन्हें बिठाया। आप बैठिए, मैं चाय का कह कर आती हूँ। नहीं बेटा, मैं जा रही हूँ, नफीसा उठते हुए बोली। बिल्कुल भी नहीं, लंच भी आप यहीं पर करेंगी मेरे साथ। मैं आती हूँ अभी। उसे बिठाकर वो बाहर निकली। नफीसा उसकी शाहाना ज़िंदगी देखकर मरूब ही हो चुकी थी। ज़ाहनूर मुस्कुराती हुई अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। शाहवेज़ ने बताया तुम्हारे ट्विन्स हुए हैं, मुबारक हो। नफीसा कहने लगी तो वो मुस्कुरा दी। थैंक यू, वो जवाबन बोली। शाहवेज़ कह रहा था कि बहुत प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। नफीसा मुस्कुराकर बता रही थी जब अब्दुल चाय की ट्रॉली ले आया। ज़ाहनूर ने ट्रॉली अपनी तरफ खींची। मैं बना दूंगी, आप सामिया से कहिए कि दोनों बच्चों को यहाँ ले आए मेरे पास। जो हुक्म, कहकर अब्दुल एहतराम से सर झुकाए वहाँ से निकल गया। ज़ाहनूर चाय बनाने लगी जबकि नफीसा हैरत से उसके ठाट बाट देख रही थी। चाय रखकर वो बाकी लवाजमात भी मेज़ पर रख चुकी तो सामिया भी बच्चों को लेकर यहीं आ गई। ज़ाहनूर ने मुस्कुराकर नफीसा को देखा। ये आशियान है और ये आयान। नफीसा झिझक कर उन्हें देखने लगी। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। वो दूर से उन्हें प्यार से देख रही थी। ज़ाहनूर ने उसके चेहरे पर फैले साए को देखा तो मुस्कुराकर आयान को उनकी गोद में दे दिया। नफीसा नम आंखों से उसे देख रही थी।
اللہ نصیب اچھے کرے، ماشاءاللہ۔ نفیسہ نے بے اختیار اس چھوٹے سے آیان کو پیار کیا۔ اللہ تمہیں خوشیاں نصیب کرے، وہ ذانور کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ اللہ آپ کو بھی ہمیشہ خوشیاں دے امی۔ وہ رونے لگا تھا تو ذانور نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اسے پیار سے چپ کرانے لگی۔ نفیسہ کی آنکھوں کے سامنے شاہویز کا چہرہ گھوم گیا، اس کے دل پر جیسے گھونسا سا پڑا تھا۔ اس کا بیٹا اس خوشی سے محروم ہی تھا۔ ذانور نے دونوں بچوں کو سامیہ کے حوالے کیا تو وہ انہیں لے کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ ذانور نفیسہ کو دیکھ رہی تھی۔ کاش میرا بیٹا بھی اتنا خوش نصیب ہوتا، اس نے اچانک سے کہا تھا۔ ذانور خاموشی سے نظریں چرا گئی تو نفیسہ کو بھی احساس ہوا، تبھی چپ کر گئی اور چائے پینے لگی۔ اس کی جاب لگ چکی تھی اور اب وہ کافی مصروف رہنے لگا تھا۔ ابھی بھی وہ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ لیے کام کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے مصروف انداز میں کان سے لگایا فون۔ ہیلو شاہویز، دوسری طرف پلوشا تھی۔ اس نے حیرت سے گھور کر موبائل کو دیکھا، پھر کان سے لگا لیا۔ جی کہیے، کیسے ہیں آپ؟ وہ پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ بھی کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ پوچھ رہا تھا۔ آپ کو یاد کر رہی تھی میں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شاہویز لب بھینچ کر لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر اپنی کن پٹی سہلانے لگا۔ کیوں؟ آپ کو معلوم تو ہے سب، پلوشا نے بنا ہچکچاہٹ کے کہا۔ پلوشا، میں اپنا جواب دے چکا ہوں، شاہویز نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ پھر میں بھی آپ کا ساتھ ہی چاہوں گی، اس کے دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں کہنے پر وہ حیران ہی ہوا تھا۔ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا پلوشا۔ کیوں؟ وہ خاموش رہا۔ شاہویز، اس نے دھیرے سے اس کا نام لیا۔ جی، مل سکتے ہیں ابھی مجھ سے؟ شاہویز نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس وقت؟ اسے عجیب لگا تھا۔ پلیز شاہویز۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اپنی رضامندی ظاہر کر کے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کچھ دیر وہ موبائل کو گھورتا رہا، پھر اپنی آنکھیں مسل کر اس نے خود کو فریش کیا۔ بیڈ سے اتر کر بائک کی چابی لے کر باہر کی طرف نکل گیا۔ سمندر کنارے وہ اس کی منتظر تھی۔ شاہویز اسے دیکھ چکا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ اس کے پاس آیا۔ جی کہیے، پلوشا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے ہزاروں رنگ تھے۔ شاہویز نے اپنی آنکھیں چرائیں۔ شادی کرو گے مجھ سے؟ پلوشا نے اچانک پوچھا تھا۔ شاہویز حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہی جو آپ سن رہے ہیں، شادی کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ کیا آپ بھی کرنا چاہیں گے؟ سمپل سا سوال ہے۔ اس کے لب بھی مسکرا رہے تھے۔ محبت بھری نظروں سے وہ شاہویز کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ پلوشا کے لہجے میں بے چینی پنہاں تھی۔ شاہویز نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ میں ذانور کو نہیں بھول پا رہا۔ پلوشا کے چہرے پر درد بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو کون کہہ رہا ہے اسے بھولنے کو؟ شاہویز اسے دیکھ کر ہی رہ گیا۔ جب اسے بھول ہی نہیں پا رہا تو اس کی جگہ کیسے کسی اور کو دوں پلوشا؟ مجھے اس کی جگہ نہیں چاہیے، اپنی جگہ چاہیے بس، جو میں آپ کی زندگی میں بنا کر رہوں گی۔ پلوشا راہ حل بتا رہی تھی، جبکہ شاہویز لب بھینچ گیا۔ پھر بھی پلوشا، میری ذات سے تمہیں کوئی خوشی، کوئی سکھ نہیں مل سکتا۔ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ؟ وہ بے چینی سے اس کے چہرے پر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ شاہویز کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر نظریں جھکا گیا۔ میں نہیں بتا سکتا کہ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ، لیکن مجھے جاننا ہے تم یوں مجھ سے شادی سے انکار کیوں کر رہے ہو شاہویز۔ میں اس کے جتنی شاید خوبصورت نہیں ہوں، لیکن پھر بھی شاہویز، پھر بھی میں تم سے محبت کر بیٹھی ہوں، وہ بے چارگی سے کہہ رہی تھی۔ شاہویز خاموش رہا۔ کیوں نہیں کر رہے مجھ سے شادی؟ تمہیں بتانا ہوگا۔ کیوں نہیں کر رہے مجھ سے شادی؟ تمہیں بتانا ہوگا شاہویز، وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ میں کبھی بھی تمہیں ماں بننے کی خوشی نہیں دے سکتا پلوشا۔ اس کے چہرے پر قرب سا پھیلا تھا، اس کی آنکھیں بے چین تھیں۔ پلوشا اسے دیکھ کر ہی رہ گئی۔ پھر بھی میں شادی کرنا چاہتی ہوں تم سے۔ شاہویز حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے کہہ سکتی تھی یہ؟ جذبات میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ دکھ ہی دیتے ہیں پلوشا۔ میں سوچ سمجھ کر اپنے فیصلے بتا رہی ہوں تمہیں شاہویز۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں، مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے، وہ اس کی بے بس ہوتی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی، جبکہ ان آنکھوں میں پلوشا کے لیے کوئی جذبہ، کوئی احساس نہیں تھا، بس ایک بے بسی سی تھی۔ وہ پیچھے قدم اٹھانے لگا۔
मैं नहीं कर सकता। आई एम सॉरी पलवशा। यूं ही चलते चलते वो एकदम मुड़ा और वहाँ से भागते हुए जाने लगा। बाइक के पास आकर उसने गहरी सांसें ली। वो ज़ाहनूर को नहीं भूल पा रहा था तो वो पलवशा को कैसे उसकी जगह दे सकता था। वो आईने के सामने खड़ा अपना अक्स देख रहा था। उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। रात के 3 बज रहे थे और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो खुद का अक्स देखने लगा। उसे अपनी आंखों में ज़ाहनूर का अक्स ही दिख रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी रकम थी। हर सांस के साथ उसे ज़ाहनूर की याद आ रही थी। वही ज़ाहनूर जिसे वो कभी खुशी, सुख और मोहब्बत नहीं दे पाया था और आज उसकी मोहब्बत में वो तड़प रहा था। उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसके कानों में पलवशा की आवाज़ टकराई तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। मुझे क्यों याद आ रही हो ज़ाहनूर? उसके दिल में तूफ़ान सा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बहुत याद आती हो ज़ाहनूर, बहुत ज़्यादा। वो सुर्ख होती आंखों के साथ खुद को देख रहा था। मत याद आओ, प्लीज़ मत आओ। थोड़ा रहम करो, प्लीज़ मत याद आओ मुझे, प्लीज़ ज़ाहनूर। उसने ज़ोर से आंखें बंद कर ली। जब पास थी तो तब कोई कदर ही नहीं थी। दर्द दिया तुम्हें मैंने, अजियत में रखा तुम्हें। अब क्यों याद आ रही हो? अब क्यों मोहब्बत में पागल हो रहा हूँ मैं? अब जब मेरी नहीं हो, मेरी हो भी नहीं सकती, कभी भी, कभी नहीं हो सकती मेरी, तो अब क्यों? क्यों ज़ाहनूर, क्यों? वो वहीं नीचे बैठकर अपना चेहरा हाथों में छुपा गया। उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के पास पड़े झुमकों पर गई। वो उन्हें देखने लगा। हाथों में लेकर वो देर तक ज़ाहनूर की खुशबू को महसूस करता रहा। तुम आज भी यहीं हो ज़ाहनूर, आज भी इस कमरे में मौजूद हो। तुम्हारी खुशबू आज भी यहीं है। तुम यहाँ हर तरफ हो। फिर भी खो चुका हूँ मैं तुम्हें। वो खामोशी से टांगों के गिर्द बाजू हाइल किए यूं ही बैठा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने वजूद में फैले इस दर्द को कैसे ख़त्म करे या कैसे कम करे। एक ऑफिशियल पार्टी में हमीन शाह और ज़ाहनूर शाह को दावत दी गई थी। ज़ाहनूर के ना के बावजूद भी हमीन शाह उसे जाने के लिए आमादा कर चुका था और अभी दोनों उस पार्टी में मौजूद थे। बहुत सी सताइशी नज़रें उनकी तरफ उठी थीं। उन्हीं नज़रों में से एक नज़र शाहवेज़ की भी थी, जो उसकी तरफ उठ के झुकना ही भूल गई थी शायद। ब्लैक कलर की साड़ी में हल्के मेकअप के साथ वो उसे अपने हवासों पर छाती हुई महसूस हो रही थी। हर बार वो उसे भूलने की कोशिश करता और हर बार उससे सामना होने पर शाहवेज़ का दिल जैसे कुछ और सोचने के लिए आमादा ही ना होता। वो अभी अभी वहाँ अब्बास दुरानी के साथ पहुँचा था और सबसे मिल रहा था। अब्बास दुरानी जैसे ही हमीन शाह के पास पहुँचा तो उनसे मिलकर हमीन शाह ने अपना हाथ शाहवेज़ की तरफ भी बढ़ाया, जिसे शाहवेज़ ने जल्दी से थाम लिया। फिर उसकी नज़र बावजूद कोशिश के भी ज़ाहनूर की तरफ उठी थी। उससे हाल चाल पूछकर वो निगाहें नीची करता आगे बढ़ गया। ज़ाहनूर का पूरा ध्यान आयान और आशियान की तरफ था। वो हमीन शाह की तरफ देखने लगी। फिर थोड़ा करीब होकर उसने सरगोशी की। मैं सामिया को कॉल करके बच्चों का पूछ लूँ। श्योर। उसने इस बात में सर हिलाया तो वो वहाँ से होती लॉन में चली गई और कदरे पुरसकून जगह पर जहाँ शोर कम था वो वहीं सामिया को कॉल मिलाने लगी। हाँ सामिया, बच्चे कैसे हैं? कॉल मिलते ही उसने बच्चों का पूछा। मैम, दोनों सो रहे हैं। उसका जवाब सुनकर उसने पुरसकून सांस ली। ठीक है, हम कुछ ही देर में आ रहे हैं, प्लीज़ उनके पास ही रहो। ओके मैम। कॉल डिस्कनेक्ट करके वो जैसे ही मुड़ी, सामने शाहवेज़ उसके मुकाबिल खड़ा था। मैं बच्चों का पूछ रही थी, वो कहने लगी। कैसे हैं दोनों? वो मुस्कुराकर पूछने लगा। ठीक हैं, थैंक यू। मुस्कुराकर जवाब देकर वो जाने लगी जब शाहवेज़ ने उसे रोका। कुछ देर रुकोगी प्लीज़? ज़ाहनूर ने उसे सवालिया नज़रों से देखा, लेकिन उसकी उदास आंखों में अजीब सा दुख था। वो अजीब एहसासात में घिर गई। हमीन शाह वेट कर रहे होंगे। वो बात टालने के लिए कहने लगी। याद आती हो बहुत ज़ाहनूर। शाहवेज़ की गंभीर आवाज़ पर ज़ाहनूर साकित सी हो गई। बहुत याद आती हो, भूल नहीं पा रहा मैं तुम्हें, वो कह रहा था जबकि ज़ाहनूर दम साधे उसे देख रही थी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है ज़ाहनूर, या शायद थी मोहब्बत हमेशा से। मैं कभी समझ नहीं सका या जान ही नहीं पाया, लेकिन सब तुम्हारे जाने के बाद जैसे अब भी वहीं मौजूद है। तुम्हारी खुशबू अब भी उस कमरे के कोने कोने में फैली हुई है ज़ाहनूर। शाहवेज़, स्टॉप इट प्लीज़।
इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं रहा। ज़ाहनूर को अजीब लग रहा था उसका यूं बात करना। तो मैं क्या करूं ज़ाहनूर, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? कैसे इस दर्द को कम करूं? कैसे? वो बेबसी की इंतहा पर था। शाहवेज़ प्लीज़ मुझे बदतमीज़ी करने पर मजबूर मत करो, वो नागवारी से कहती आगे बढ़ने को थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो ज़ाहनूर, वो फिर से कह उठा। ज़ाहनूर का दिल कांपा था उसकी बात पर। ये किस अंदाज से बात कर रहा था वो, लेकिन वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। उसे इन बातों से कोई मतलब था भी नहीं। वो अमीन शाह की ज़ाहनूर थी अब, उसे शाहवेज़ की मोहब्बत से, उसके एहसासात से कुछ लेना देना नहीं था। वो अंदर जाकर नज़रें दौड़ाकर अमीन शाह को ढूंढने लगी। अमीन शाह जो उसे बुलाने वहाँ तक आया था, लेकिन उनकी बातें सुनकर वहीं रुक गया था। खुद को नॉर्मल करता वो दोबारा से अंदर आया तो ज़ाहनूर मुस्कुराती हुई उसके पहलू में जाकर खड़ी हो गई। कहाँ? कहीं नहीं, यहीं था। वो कंधे उचकाकर बोला तो ज़ाहनूर मुस्कुराकर इधर उधर देखने लगी। अमीन शाह की नज़रें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। शाहवेज़ पर नज़र पड़ते ही उसके चेहरे का रंग बदला था, जिसे अमीन शाह देख चुका था। उसकी नज़रों के ताक़ुब में अमीन शाह ने देखा तो शाहवेज़ को देखकर उसने लब भींच लिए। वो उनके बीच आने की कोशिश कर रहा था। अब क्यों आना चाहता है वो? ज़ाहनूर उस पर से नज़रें हटा चुकी थी, लेकिन अमीन शाह अब भी ज़ाहनूर के चेहरे को देखते हुए यही सोच रहा था कि शाहवेज़ फिर से तो कोई गेम नहीं चलाने लगा। वो ज़ाहनूर को किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहता था। ज़ाहनूर चेंज करके कमरे में आई। अपने बालों में ब्रश फेर कर वो आईने के सामने अमीन शाह के अक्स को देखकर सोच रही थी, जो पुरसोच नज़रों से ज़ाहनूर को ही देख रहा था। वो उसके यूं देखने से परेशान सी हो गई। खुद को नॉर्मल जाहिर करते वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी। ऐसे क्यों देख रहे हो अमीन? अमीन शाह ने सर झटका। कैसे देख रहा हूँ? वो मुस्कुराती हुई उसके पास आई, लेकिन वो अब भी कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हो अमीन? उसका दिल बेतरह से धड़क रहा था। उसे लगा कि अमीन शाह ने उसकी और शाहवेज़ की बातें ना सुन ली हों। सोच रहा हूँ कि कितना चेंज हो गई हो तुम। अमीन शाह की बात पर ज़ाहनूर ने चौंक कर उसे देखा। ज़ाहनूर की आंखों में उसे डर नज़र आया। मैं तो वही ज़ाहनूर हूँ, अमीन शाह की ज़ाहनूर, वो धीरे से बोली थी, लेकिन फिर भी चेंज हो गई हो। वो गौर से उसका चेहरा देखते हुए कह रहा था, जबकि अमीन शाह के लब मुस्कुरा उठे। पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो यार। ज़ाहनूर कुछ देर उसे देखती रही। इतना सीरियस मजाक? मजाक थोड़े ही है, सच कह रहा हूँ। अमीन शाह दिलचस्पी से उसे देखता कह रहा था, जबकि ज़ाहनूर ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। नेक्स्ट टाइम ऐसा मजाक ना करना प्लीज़, जो हुक्म मेरी बेगम का। वो मुस्कुरा रहा था। वो शाहवेज़ की बातों को सोच रहा था। वो ज़ाहनूर को चाहने लगा है, ये बात उसे इश्तियाल दिला रही थी, लेकिन वो अब 2 बच्चों का बाप था। वो शाहवेज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसे अब इस बात का डर नहीं था कि वो ज़ाहनूर को कोई नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो ज़ाहनूर को चाहने लगा है, ये बात उसे परेशान कर रही थी। उसने ज़ाहनूर और उसके बच्चों की ज़िंदगी बचाई थी, जिसकी वजह से ज़ाहनूर के दिल में शाहवेज़ के लिए एहतराम बढ़ गया था। वो ये भी जानता था कि ज़ाहनूर उससे बेहद मोहब्बत करती है। वो किसी तौर भी ज़ाहनूर पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर ज़ाहनूर के दिल में भी शाहवेज़ के लिए मोहब्बत बढ़ गई तो शाहवेज़ उसका शौहर रह चुका था, और अगर वो फिर से ज़ाहनूर के दिल में अपनी मोहब्बत जगा पाया तो मफलूज होते जहन के साथ उसने ज़ाहनूर के सोए हुए वजूद पर निगाह डाली। कितने सुकून से सो रही थी वो उसे देखे गया। ज़ाहनूर के बिना वो जीने का सोच भी नहीं सकता था। इंसान चाहे जितना भी ताकतवर हो, अपनी ताकत से जितना भी किसी इंसान को डराए, लेकिन वो ताकतवर इंसान अपनी मोहब्बत को खोने से ज़रूर डरता है। यहाँ वो डर जाता है। उसे शाहवेज़ की आंखें याद आईं, जिस तरह से वो ज़ाहनूर को देख रहा था। उसके चेहरे पे कुर्ब सा था, उसकी आंखों में नारसाई का दुख था, और फिर उसके अल्फाज। वो एकदम उठ बैठा। सर झटक कर वो ज़ाहनूर को देखने लगा। शाहवेज़ को देखकर उसके चेहरे का रंग बदला था। उसे वो लम्हा याद आया तो वो सर पकड़ कर बैठ गया। ऐ मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा। ज़ाहनूर से अलग होने का मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे मेरी ज़ाहनूर से अलग मत करना मेरे रब, प्लीज़।